Buenos dias, mi amigos. This is Arakan, prominent English lectionist and preceptor. Today is a wonderful class. This is class number 14 of Capstone Spoken English classes. This class will give you a wonderful way to ask question. Now, through this class, you can ask questions to the people you want to. Remember that if you need a reply, if you need an answer, you just need a question. If you have a wonderful question, then your reply could be wonderful too. If you want the appropriate answer, everybody wants the appropriate answer, but to get that, you really need an appropriate question. You just need a wonderful question to get the wonderful answer. Question is one of the most important things. We need to ask ourselves question every single time. Whatever we've been doing in our life, so we just need to ask question to ourselves as well. We ask question to the people as well, to the people around us and to the people in our family. We ask a lot of questions. Okay, in our childhood, we used to ask a lot of questions. But right now, at this particular time, I don't think when we get older and older, I think we do not ask that much question. Now, asking question doesn't mean that ask to a particular person only. Asking question means to ask question to yourself as well. Ask question to yourself and do the research for yourself. So asking question can give you so many things. That's what makes this class so important, right? So to make it an impeccable class, I brought to you this class, and to make it an impeccable one, we just need to understand that asking question is the only way to finding solution. You cannot find a solution without asking a question. Wow, what a thought I just gave you. We just need that, right? We need to ask question. Whatever you are doing right now, whatever somebody else is doing right now, if you really want a positive response or the response that you want, for getting the response, you just need to ask a question. So that is today's class is all about, guys, asking question. And we are going to learn all and every single way to ask question to the people. So don't worry about that, and hit the like button and subscribe if you're new to the channel. So without any further ado, let's begin the class. So the first word we have here is what. सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पर दे रखा है वो है what, right? What यहाँ पर दे रखा है हमें. What मतलब होता है क्या. Alright? जब आपको information चाहिए, when you need the information of the people, then you ask with what. All the question you ask with what. To know the information about something, we use what. What is a WH word. Okay? So ऐसे आप question पूछते हैं इससे. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है. अब देखिए जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने कर लिए हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए. इतनी इंटरेस्टिंग क्लास है. हम सेंटेंसेस देख रहे हैं यहाँ पर, और इस लेवल पे अब हम आ गए हैं कि क्वेश्चन बना सके उससे. तो देखिए सबसे पहले है, जब हमें क्वेश्चन करना है सेकंड पर्सन से, व्हाट से. व्हाट मतलब होता है क्या. नीड टू एक्शन, मैंने बताया था नीड टू एक्शन, नीड टू लर्न लिखा है, कोई काम करने की जरूरत है ना. तो आवश्यकता है, आवश्यकता को ही जरूरत बोलते हैं. हिंदी थोड़ी ज्यादा हो गई यहाँ पर. सो तुम्हें आज क्या सीखने की जरूरत है. तुम्हें आज क्या सीखने की जरूरत है या आवश्यकता है. तो कैसे बोलोगे. What do you need to learn today? What do you need to learn today? When you are asking a question, remember that when you ask a question, your voice must go down at the end of the sentence. जब भी आपको पूछना है भाई तुझे आज क्या सीखने की जरूरत है या आवश्यकता है, तो आप बोलेंगे What do you need to learn today? What do you need to learn today? अब मैं बताता हूं आपको एक सही तरीका इसको बोलने का, नेटिव स्पीकर पे कैसे बोलना चाहिए. आप इसको बोलो वर्ड. ये टी को हम हटाएंगे, इस टी के साउंड को हटाओ, डायरेक्ट डी को मिलाओ, वर्ड. और वर्ड यू बोलो, इसको हटा दो, डी के ओ को हटा दो और बोलो वर्ड यू. बोलो वर्ड यू. What do you need to learn today? What do you need to learn today? What do you need to learn today? देखिए कितना स्मूथ है और कितना अच्छा तरीका है. मैं मेरे इंट्रोडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिशनिस्ट बोलता हूं. तो यही है तरीका कैसे कनेक्टेड स्पीच से आपकी स्पोकन इंग्लिश बेहतरीन हो सकती है और आप साउंड कर सकते हो बिल्कुल अंग्रेज की तरह, जो कि सही तरीका भी है. मैं पहले भी बता चुका हूं, हमें नेचुरल साउंड करना है गाइस, रोबोट की तरह साउंड नहीं करना है. तो इसको बोलने का तरीका, एक तो रीडिंग करने का तरीका हो गया, व्हाट डू यू नीड टू लर्न टुडे. नॉट गुड. आपको अगर बोलना है बढ़िया लेवल पे तो आप बोलेंगे व्हाट डू यू नीड टू लर्न टुडे. व्हाट डू यू नीड टू लर्न टुडे. व्हाट डू यू नीड टू लर्न टुडे. इस तरीके से. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सपोज टू एक्शन. अब सपोज टू मतलब कोई काम करना चाहिए या करना है. ठीक है, यहाँ पे चाहिए बोल रखा है, चाहिए बोल दो या करना है. सपोज टू मतलब जिम्मेदारी होती है कि कोई काम आपको करना है, राइट. तो What are you supposed to complete before evening? तो क्या देखा है, तुम्हें शाम से पहले, आज जो शाम है
तुम्हें शाम से पहले, इवनिंग से पहले क्या काम पूरा करना चाहिए या करना है, ओनली करना है भी बोल सकते हो। तो क्या काम करना है, कैसे पूछेंगे? व्हाट आर यू सपोज टू कंप्लीट, व्हाट आर यू सपोज टू कंप्लीट बिफोर इवनिंग, व्हाट आर यू सपोज टू कंप्लीट बिफोर इवनिंग। ठीक है, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, कोई काम मैंने अभी अभी किया है, हम कर चुके हैं। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, कोई काम मैंने अभी अभी किया, मैंने खाना खा लिया है, उस हिसाब से वो यूज करते हैं। तो तुमने इस सप्ताह क्या पूरा किया, तुमने इस वीक में क्या पूरा किया है। ठीक है, सो व्हाट हैव यू फिनिश्ड दिस वीक, व्हाट हैव यू फिनिश्ड दिस वीक, राइट। नेक्स्ट है व्हाट का एक और सेंटेंस, डिड यू एक्शन, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, कोई काम मैंने पास्ट में किया था, कल किया था, उसके लिए क्वेश्चन में डिड पूछते हैं हम। तो तुमने कल क्या अभ्यास किया, क्या प्रैक्टिस की, कैसे पूछेंगे? व्हाट डिड यू प्रैक्टिस यस्टरडे, तुमने कल क्या खाया इन डिनर, डिनर मतलब रात का खाना होता है, रात का भोजन। तो यहां पर आ जाएगा प्रैक्टिस की जगह हैव इन डिनर। व्हाट डिड यू हैव इन डिनर यस्टरडे, व्हाट डिड यू हैव इन डिनर यस्टरडे, कल रात में तुमने क्या खाना खाया। ठीक है, अपने हिसाब से आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे आई वॉज एक्शन आईएनजी, कोई काम मैं कर रहा था पास्ट में, आप क्वेश्चन में सेकंड पर्सन से क्वेश्चन में पूछते हो वर यू, जब मैंने तुम्हें बुलाया तब तुम क्या कर रहे थे। ऐसे सेंटेंस बहुत हम यूज करते हैं। इंग्लिश क्या होगी? व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू। नेक्स्ट देखेंगे तुम कल क्या तैयार करने वाले हो, गोइंग टू एक्शन हम यूज करते हैं जब कोई काम मैं करने वाला हूं, राइट, गोइंग टू एक्शन, जिसमें हम गोना यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो गोइंग टू एक्शन, गोइंग टू एक्शन अब कुछ लोगों ने क्लास ली होगी तो पता होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। गोइंग टू एक्शन हम यूज करते हैं जब कोई काम आप करने वाले हो, फ्यूचर में काफी करीब हो। हम आने वाले टाइम में इसको देखेंगे गोइंग टू एक्शन को, ये भी आ गया यहाँ पर, कोई काम मैं करने वाला हूं, राइट। तुम कल क्या तैयार करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू प्रिपेयर टुमारो, व्हाट आर यू गोइंग टू प्रिपेयर टुमारो, राइट। नेक्स्ट है वांट टू इंप्रूव, वांट टू अभी हमने किया नहीं है, बट वांट टू भी स्ट्रक्चर हम करेंगे। वांट टू मतलब होता है चाहते हो, क्या चाहते हो तुम करना। ठीक है, तो तुम इस वर्ष, इस साल तुम क्या सुधारना चाहते हो, आप बताओ क्या सुधारना चाहते हो। इसका आंसर होगा आई वांट टू एक्शन से, और एक्शन ऑलरेडी दे रखी है इंप्रूव, और इंप्रूव क्या, इंग्लिश। तो आपको बताना है आंसर। व्हाट डू यू वांट टू इंप्रूव दिस ईयर, इस साल तुम क्या सुधारना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो आई वांट टू इंप्रूव इंग्लिश दिस ईयर, इस साल में इंग्लिश सुधारना चाहता हूं। ठीक है, सो व्हाट आर यू एडिक्टेड टू वॉचिंग दीज डेज, इन दिनों तुम क्या देखने के आदी हो, तुम्हें क्या देखने की लत है इन दिनों। ठीक है, व्हाट आर यू एडिक्टेड टू वॉचिंग दीज डेज, ऑफ कोर्स if you really want to learn English, you are addicted to watching CES English YouTube videos, right? CES English videos देखने के आदी हो गए हो, you are addicted to watching CES English YouTube videos, right? तो ये था हमारा क्या से, क्या, what मतलब होता है क्या, तो तुम्हें क्या सीखने की जरूरत है आज, what do you need to learn today, इस हिसाब से आप क्या यूज करते हो। ठीक है, अगर आपको किसी का नाम पूछना है तो कैसे पूछ लेंगे, आपको सबको पता होगा, what is your name, व्हाट इज योर नेम को भी आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। व्हाट इज को व्हाट्स कर दें, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये व्हाट का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, नेक्स्ट जो देख रहे हैं दोस्तों आप, उसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ, राइट, जगह के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर प्लेस एंड लोकेशन। तो कहाँ के लिए हम वेयर यूज करते हैं, जैसे तुम्हें कल कहाँ उपस्थित होना है, तुम्हें कल कहाँ उपस्थित होना है। Where do you have to report tomorrow? Have to मतलब मजबूरी, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो कहाँ जाना है तुम्हें, कहाँ जाना है। ठीक है, कहाँ उपस्थित होना है। उपस्थित होना मतलब है जैसे आपको बुलाया है कहीं, मान लीजिए पुलिस स्टेशन पर बुलाया है, स्कूल में बुलाया है, तो इसके लिए हम एक्शन यूज करते हैं रिपोर्ट। ठीक है, तो तुम्हें कल कहाँ उपस्थित होना है, कैसे पूछेंगे, Where do you have to report tomorrow? Where do you have to report tomorrow? अगर तुम्हें परसों कहाँ उपस्थित होना है, तो आने वाला जो परसों होता है ना दोस्तों, उसकी इंग्लिश होती है डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ध्यान रखिएगा, डे आफ्टर टुमारो ये होता है परसों। ठीक है, सो तुम्हें परसों कहाँ उपस्थित होना है, कैसे पूछेंगे, तो कैसे पूछेंगे दोस्तों, डे आफ्टर टुमारो। वेयर डू यू हैव टू रिपोर्ट डे आफ्टर टुमारो, वेयर कहाँ उपस्थित होना है, वेयर डू यू हैव टू रिपोर्ट डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तुम्हें फॉर्म कहां जमा करना चाहिए, तुम्हें फॉर्म कहां जमा करना चाहिए और कहां करना है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है फॉर्म जमा कराने की।
तो वेयर आर यू सपोज टू सबमिट द फॉर्म, तुम्हें फॉर्म कहां जमा कराना चाहिए? तो काउंटर पर कराना चाहिए. आई एम सपोज टू सबमिट द फॉर्म एट द काउंटर. ओके, आई एम सपोज टू और आई एम सपोज टू सबमिट द फॉर्म एट द काउंटर. आपकी जिम्मेदारी यही है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब क्वेश्चंस के आंसर बनाएं और होमवर्क में सेंड करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में सेंड करें पूरा, और अपनी नोटबुक में भी इसको बनाएं, इसके आंसर्स भी करें. आंसर्स करना भी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम पहले कहां काम कर चुके हो? तुम पहले कहां काम कर चुके हो? बहुत ही कॉमन और जनरल क्वेश्चन है दोस्तों. कितना हम पूछते हैं क्वेश्चन, कैसे इंग्लिश में बोल देंगे? वेयर हैव यू वर्क बिफोर? वेयर हैव यू वर्क बिफोर? ठीक है, हैव यू के साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन के साथ हैज यूज होता है. तो हम बोल सकते हैं कि जैसे नेम ले लिया, मेरा ही नेम ले लेते हैं, SARWAR. सर्वर कहां काम कर चुका है? कैसे पूछेंगे? वेयर हैज सर्वर, हैव नहीं आएगा, थर्ड पर्सन के लिए हैज आएगा. वेयर हैज सर्वर वर्क बिफोर? वेयर हैज सर्वर वर्क बिफोर? इस तरीके से बोलना है, राइट? फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि तुम कल रात कहां रुके थे? तुम कल रात कहां रुके थे? मान लीजिए कभी ऐसा रात हो जाती है तो हम कहीं रुक जाते हैं, रात में स्टे करते हैं. सो वेयर डिड यू स्टे लास्ट नाइट? वेयर डिड यू स्टे लास्ट नाइट? वेयर मतलब होता है कहां, गाइस, ये सिखाया जा रहा है आपको. वेयर का मतलब होता है कहां. उसके बाद है तुम पिछले महीने कहां यात्रा कर रहे थे? तुम पिछले महीने लास्ट मंथ कहां यात्रा कर रहे थे, कहां ट्रेवल कर रहे थे? वेयर वर यू ट्रेवलिंग लास्ट मंथ? वेयर वर यू ट्रेवलिंग लास्ट मंथ, राइट? उसके बाद है तुम अगले वर्ष कहां पढ़ने वाले हो? देखो, कोई काम करने वाला हो उसके लिए गोइंग टू एक्शन यूज होता है, पहले भी बता चुका हूं मैं. तो वेयर आर यू गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट ईयर? अच्छा, इस गोइंग टू का एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं गोना. ध्यान रखना, इसको हम गोना बोलते हैं. तो गोइंग और टू दोनों को मिला के आप सिर्फ गोना भी बोल सकते हो. कैसे बोलेंगे? वेयर आर यू गोना स्टडी नेक्स्ट ईयर? तू कहां स्टडी करने वाला, तू कहां पढ़ने वाला अगले साल? वेयर आर यू गोना स्टडी नेक्स्ट ईयर? वेयर आर यू गोना स्टडी नेक्स्ट ईयर? ठीक है. नेक्स्ट है तुम भविष्य में कहां बसना चाहते हो? सो वेयर डू यू वांट टू सेटल इन द फ्यूचर? सेटल इन द फ्यूचर, सेटल होता है बसना. ठीक है. सेटल विद समबडी मतलब घर बसाना किसी के साथ. सेटल विद समबडी एक्शन है हमारे पास. सेटल विद समबडी, समबडी की जगह किसी का भी नाम आ जाएगा. घर बसाना, घर बसाने के लिए एक और एक्शन है हमारे पास, वो है स्टार्ट अ फैमिली. ठीक है, स्टार्ट अ फैमिली, स्टार्ट अ फैमिली विद समबडी. सेटल विद समबडी, स्टार्ट अ फैमिली विद समबडी, राइट? घर बसाना किसी के साथ. नेक्स्ट है वेयर हैव यू बीन एडिक्टेड टू स्पेंडिंग योर टाइम रिसेंटली? हाल ही में, रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, इन दिनों में. हाल ही में तुम अपना समय कहां बिताने के आदी रहे हो? वेयर हैव यू बीन एडिक्टेड टू? वेयर हैव यू बीन एडिक्टेड टू स्पेंडिंग योर टाइम रिसेंटली? इस तरीके से इसको यूज करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं अब हम. वेयर हो गया हमारा दोस्तों. वेयर के बाद हमारे पास आता है व्हेन. व्हेन मतलब होता है कब. ये भी एक क्वेश्चन है, कब. ठीक है. तुम्हें स्कूल के लिए कब निकलना है? तुम्हें स्कूल के लिए कब निकलना है? बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में. सो वेयर डू यू नीड टू लीव फॉर स्कूल? व्हेन डू यू नीड टू लीव फॉर स्कूल? कब निकलना है और कब निकलना चाहिए. हिंदी देखिए, हिंदी पूरी तरीके से पर्टिकुलर हिंदी नहीं है, बट कब निकलना चाहिए, क्या जरूरत है आपकी, क्या रिक्वायरमेंट है, किस समय निकलना चाहिए, तो उसके लिए व्हेन डू यू नीड टू लीव फॉर स्कूल. नेक्स्ट है तुम्हें कब पहुंचना चाहिए. ठीक है, तुम्हें कब पहुंचना चाहिए. तो व्हेन आर यू सपोज टू अराइव? ये देखो, ये तो है कि एक रिक्वायरमेंट है, इसमें तो रिक्वायरमेंट नजर आ रही है. नीड टू में रिक्वायरमेंट, आप देखेंगे दोनों में चाहिए चाहिए आ रहा है. दोनों में फर्क क्या है? एक तो रिक्वायरमेंट है, एक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. एक तो रिक्वायरमेंट हो गई, एक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. ये दो चीज चल रही है, एक आपकी रिक्वायरमेंट है, दूसरी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तुम्हें कब पहुंचना चाहिए? व्हेन आर यू सपोज टू अराइव? व्हेन आर यू सपोज टू अराइव. नेक्स्ट है तुमने असाइनमेंट कब पूरा किया है? तुमने असाइनमेंट कब पूरा किया है? When have you completed the assignment? या इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, have you की जगह आप डायरेक्ट did you complete भी लगा सकते हैं. When did you complete the assignment? नेक्स्ट है तुमने अंग्रेजी सीखना कब शुरू किया? ये बहुत अच्छा सवाल है. तुमने अंग्रेजी सीखना कब शुरू किया? When did you start learning English? When did you start learning English? अब अपने आप से पूछिए, आंसर हो जाएगा I started learning English 1 week ago, 2 weeks ago, a month ago, a year ago. जो भी आंसर आपका हो सकता है. तुम परीक्षा की तैयारी कब कर रहे थे? When were you preparing for the exam? कब कर रहे थे? कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा था. When were you preparing for exam? ठीक है. तुम अपने दादा दादी से कब मिलने वाले हो? तुम अपने दादा दादी से कब मिलने वाले हो? इसका आंसर क्या होगा? When are you going to visit your grandparents?
When are you going to visit your grandparents? When are you going to visit your grandparents? इस तरीके से आप पूछ सकते हो. When are you going to visit your grandparents? Next है, तुम परियोजना कब शुरू करना चाहते हो? तुम परियोजना कब शुरू करना चाहते हो? परियोजना मतलब होता है कोई प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हो उसको बोलते हैं परियोजना. ठीक है. When do you want to begin the project? When do you want to begin the project? Next है, when have you been addicted to playing video games? तुम कब से खेलने के आदी हो रहे हो? तुम कब से वीडियो गेम्स खेलने के या कोई भी गेम्स खेलने के आदी हो रहे हो? तुम कब से कोई गेम्स खेलने के आदी हो रहे हो? तुम्हें कब से लत है गेम्स खेलने की? राइट. सो व्हेन हैव यू बीन एडिक्टेड टू प्लेइंग गेम्स? ये व्हेन वाली चीजें थी गाइस सारी. व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश? तुमने अंग्रेजी सीखना कब से शुरू किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप से आंसर भी करना इसका. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास वाई. वाई जो यूज होता है दोस्तों, वाई यूज होता है क्यों, रीजन बताने के लिए. जब भी आपको कोई रीजन बताना है तब वाई यूज करोगे. अच्छा, इसके वाई में हम जो आंसर में यूज करते हैं वो ज्यादातर यूज करते हैं बिकॉज, क्योंकि. इसका मतलब होता है क्योंकि. ठीक है. जैसे तुम्हें बैठक में शामिल होने की आवश्यकता क्यों है? बैठक मतलब होता है मीटिंग, किसी भी मामले पर, मुद्दे पर बात चल रही है उसको मीटिंग कहते हैं. व्हाई डू यू नीड टू अटेंड द मीटिंग? व्हाई डू यू नीड टू अटेंड द मीटिंग? तो आंसर किस हिसाब से करोगे इसका? जो इसका आंसर करने का तरीका है वो थोड़ा सा अनयूजुअल है, अलग तरीके से इसका आंसर करना पड़ेगा. आई नीड टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज. इसको बिकॉज मत बोलो, इसको बोलना बिकॉज. आई नीड टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज, कोई भी रीजन हो सकता है. बिकॉज आई एम द बॉस, मैं बॉस हूं भाई. आई एम द बॉस बिकॉज मैं कुछ अच्छी चीजें बताना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू से समथिंग गुड. ठीक है. आई वॉन्ट टू मेंशन सम क्रूशियल पॉइंट्स, कुछ बेहतरीन पॉइंट्स, मुद्दे उठाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं मैं. तो कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन बताना है इसमें. तुम्हें ये नियम क्यों मानने चाहिए? Why are you supposed to follow these rules? ठीक है. तुम्हें नियम क्यों मानने चाहिए? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें नियम मानने की? क्या जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी? Why are you supposed to follow these rules? नेक्स्ट है हमारे पास, तुमने अपना निर्णय क्यों बदला? निर्णय मतलब डिसीजन. Why have you changed your decision? तुमने अपना निर्णय क्यों बदला है? Why have you changed your decision? तुमने ये कोर्स क्यों चुना? ये कोर्स, CS इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश कोर्स क्यों चुना? Why did you choose this course? आंसर क्या होगा? I chose this course. I chose this course. या तो because लगा दो. Because I need to action. I need to master English. सही है गाइस? आंसर हो गया इसका. आप कर सकते हो सब. मैंने ये कोर्स क्यों चुना? तुमने ये कोर्स क्यों चुना? Why did you choose this course? तुमने ये कोर्स क्यों चुना? Why did you choose this course? आंसर हो जाएगा I chose this course because I need to master English. क्योंकि मुझे जरूरत है इंग्लिश सीखने की. नेक्स्ट है हमारे पास, तुम बाहर इंतजार क्यों कर रहे थे? Why were you waiting outside? Why were you waiting outside? ठीक है. तुम नया लैपटॉप क्यों खरीदने वाले हो? Why are you going to buy a new laptop? Why are you going to buy a new laptop? मान लीजिए न्यू आईफोन हो तो कैसे बोल देंगे? Why are you going to buy a new iPhone? नेक्स्ट है हमारे पास, तुम कोडिंग क्यों सीखना चाहते हो? Why do you want to learn coding? तुम कोडिंग क्यों सीखना चाहते हो? Why do you want to learn coding? इस कोडिंग की जगह क्या हो सकता है? स्पोकन इंग्लिश. तुम स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? Why do you want to learn spoken English? इसका आंसर आपको करना है कमेंट्स में. कोडिंग अगर आप सीख रहे हो तो कोडिंग का कर सकते हो, बट हम ऑब्वियसली आप सभी सीख रहे हो स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश सीख रहे हो आप सब. तो आखिर इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो आप? क्या रीजन है आपका? कोई भी काम हम करते हैं गाइस, उसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, वो हमें पता होना चाहिए. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम बार बार अपना फोन देखने के आदी क्यों हो? तुम बार बार अपना फोन देखने के आदी क्यों हो? Why are you addicted to checking your phone? Why are you addicted to checking your phone? Right? नेक्स्ट है हमारे पास हाउ. हाउ मतलब होता है कैसे. ठीक है. कैसे मतलब होता है कि ये बताया जाता है इसमें प्रोसीजर, किसी भी चीज का प्रोसीजर, कैसे कोई चीज हो रही है, क्या तरीका है, क्या तौर तरीके उस चीज के, तो उसके लिए हम कैसे पूछते हैं. कैसे वाले हाउ से क्वेश्चन करते हैं. एक सक्सेस का मतलब इंटरव्यू होता है. तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है? कैसे करनी है तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी, कैसे जरूरत है? हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू? नीड टू एक्शन कर चुके हैं. हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. नेक्स्ट है हमारे पास, तुम्हें ये समस्या कैसे हल करनी चाहिए? हाउ आर यू सपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाउ आर यू सपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. या तुम्हें इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए, कैसे बोलेंगे? हाउ आर यू सपोज टू मास्टर इंग्लिश? हाउ आर यू सपोज टू मास्टर इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? हाउ आर यू सपोज टू प्रैक्टिस इंग्लिश. ठीक है, सेंटेंसेस बनाने हैं आपको.
तुमने अपने बोलने की क्षमता कैसे सुधारी? ठीक है, बोलने की क्षमता मतलब स्पीकिंग स्किल्स, या आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स. सो हाउ हैव यू इंप्रूव्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स? बाय वॉचिंग सीएस इंग्लिश वीडियोस. ऐसे आंसर कर सकते हो आप. ठीक है, कौन तुम्हें किसको कांटेक्ट करने की जरूरत है? ठीक है, या कौन बोल दो या किसको बोल दो, है ना? तो कैसे बोल सकते हैं? हु डू यू नीड टू कॉन्टेक्ट. और देखते हैं हु के हम. हु का नेक्स्ट है तुम्हें आज किससे मिलना चाहिए? हु आर यू सपोज टू मीट टुडे? हु आर यू सपोज टू मीट टुडे? तुम्हारे सबसे अधिक मदद किसने की है? तुम्हारी सबसे अधिक मदद किसने की है? हु हैज हेल्प्ड यू द मोस्ट? हु हैज हेल्प्ड यू द मोस्ट? बोल सकते हो माय पेरेंट्स. माय पेरेंट्स हैव, पेरेंट्स है तो हैव आएगा. माय पेरेंट्स हैव हेल्प्ड मी द मोस्ट. माय पेरेंट्स हैव हेल्प्ड मी द मोस्ट. तुमने पार्टी में किसे बुलाया? Who did you invite to the party? Who did you invite to the party? I invited my friends to the party. Answer हो सकता है. Have you improved your speaking skills or communication skills? So by joining CS English, by subscribing to CS English YouTube channel, I have improved my speaking skills. Next है, तुमने काम इतनी जल्दी कैसे पूरा किया? How did you complete the work so quickly? How did you complete the work so quickly? तुम सब कुछ अकेले कैसे संभाल रहे थे? How were you managing everything alone? How were you managing everything alone? सर्वर अकेले सब कैसे संभाल रहा था? अभी गाइस सब अकेले मैं संभाल रहा हूं. ठीक है, की वीडियोस वगैरह बनाता हूं मैं आपके लिए, और मैं आपके लिए टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह लाता हूं. इस वीडियो को एडिट करता हूं, सब चीज में करता हूं, शूट करता हूं. बहुत ज्यादा आसपास शोर होता है, लेकिन सब चीज के बावजूद मैं काम करता हूं. तो मैं काम कर रहा हूं, तो मैं आपसे बहुत सारी चीजें नहीं चाहता हूं. सिर्फ 2-3 चीजें जो चाहता हूं. सबसे पहली चीज कि आप अच्छे से इंग्लिश सीखें, वीडियोस को पूरा देखें, और ज्यादा से ज्यादा लोग जितने भी जुड़ रहे हैं सब वीडियोस देखें. अभी थोड़ा सा मैंने देखा है कि आप लोगों का मोरल डाउन हो रहा है, स्पेशली जो छुट्टियां आई थी, 3-4 दिन वीडियोस नहीं आई थी उसके बाद. गाइस ऐसा नहीं करना है हमें. 11,000 का ध्यान रखना है. 11,000 रुपए, ये इसके ऊपर हमें जाना है. सो ये है, इसके अलावा 11,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, और भी अलग प्राइजेस हैं. तो ये सब पैसों के लिए हमें जाना है. ये इनाम हमारे लिए ही है, आप लोगों के लिए ही है. आप लोग मेहनत करोगे तो आएगा. और बाकी जो सबसे बड़ा इनाम तो ये है कि हम स्पोकन स्किल्स सीखें. तो आप प्रैक्टिस करें घर पर, मिरर प्रैक्टिस करें घर पर, बहुत जरूरी है. और वीडियोस आपको सेंड करना है, वीडियोस बनानी है और सेंड करना है मुझे, या कोई भी ग्रुप चैनल पर, जिस पे भी आप हो ग्रुप पर, उस पर आप सेंड कर सकते हो. ठीक है, नहीं तो किसी भी इंडिविजुअल को भी आप सेंड कर सकते हो. वीडियोस आपको बनानी है. मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आज आपको, आपके ग्रुप्स पर आएगी, तो किस हिसाब से वीडियो बनानी है वो मैं बताऊंगा. मिरर प्रैक्टिस करनी है आपको नॉर्मली, और मिरर प्रैक्टिस मतलब है सेल्फी कैमरा. आप अपना सेल्फी कैमरा स्टार्ट करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे उसमें बोलेंगे सारे स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये सेंटेंसेस भी आप रिपीट कर सकते हो उधर. नेक्स्ट देखिए, तुम अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करने वाले हो? हाउ आर यू गोइंग टू अचीव योर गोल? गोल क्या आपका? स्पोकन इंग्लिश सीखने का. नेक्स्ट है, तुम कार्यक्रम को कैसे आयोजित करना चाहते हो? तुम कार्यक्रम को कैसे आयोजित करना चाहते हो? हाउ डू यू वांट टू ऑर्गेनाइज द इवेंट? हाउ डू यू वांट टू ऑर्गेनाइज द इवेंट? नेक्स्ट है, तुम सोशल मीडिया का इतना उपयोग करने के आदी कैसे हो गए? हाउ आर यू एडिक्टेड टू यूजिंग सोशल मीडिया सो मच? ये भी एक क्वेश्चन है जो दोस्तों से पूछ सकते हो. सोशल मीडिया कुछ लोग बहुत यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत यूज करते हैं. तो आप बोल सकते हो हाउ आर यू एडिक्टेड टू यूजिंग सोशल मीडिया सो मच? ओके, ये हाउ के क्वेश्चन थे. अब चलते हैं विच पर. विच हम कब यूज करते हैं? देखो विच यूज करते हैं हम, ठीक है, कौन सी, जब चॉइस की बात होगी, है ना, कौन सी, कौन सी, और या मैं बोलूं चॉइस. जब आप चॉइस की बात करोगे, है ना, कोई चीज चुनोगे, एक में से, दो में से कोई चीज चुनोगे, तब हम विच का यूज करते हैं. जैसे विच बुक डू यू नीड टू रीड फर्स्ट? कौन सी बुक तुम्हें पहले पढ़ने की जरूरत है? ठीक है, तुम्हें पहले कौन सी बुक पढ़ने की जरूरत है, पुस्तक पढ़ने की जरूरत है? विच बुक डू यू नीड टू रीड फर्स्ट? ठीक है, तुम्हें आज कौन सा विषय दोहराना चाहिए, कौन सा टॉपिक दोबारा से रिवाइज करना चाहिए? विच टॉपिक आर यू सपोज टू रिवाइज टुडे? तुमने कौन सा अध्याय पूरा किया है? अध्याय मतलब चैप्टर. ठीक है, विच चैप्टर हैव यू कंप्लीटेड? तुमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है? टीचर पूछ सकते हैं. तो विच चैप्टर, टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि हमने. विच चैप्टर हैव वी? टीचर ज्यादातर जो बोलेंगे, टीचर बोलेंगे हैव वी. ठीक है, हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है? विच चैप्टर हैव वी कंप्लीटेड? विच चैप्टर हैव वी कंप्लीटेड? तुमने कल कौन सा खेल खेला? विच गेम डिड यू प्ले यस्टरडे? विच गेम डिड यू प्ले यस्टरडे? आई एक्शन सेकंड फॉर्म आंसर करोगे आई एक्शन सेकंड फॉर्म से. आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे.
तुम कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? विच लेसन वर यू स्टडिंग? कोई काम पास्ट में कर रहे थे, विच लेसन वर यू स्टडिंग? तुम कौन सा कोर्स ज्वाइन करने वाले हो? विच कोर्स आर यू गोइंग टू ज्वाइन? विच कोर्स आर यू गोइंग टू ज्वाइन? ठीक है। विच स्किल डू यू वांट टू डेवलप? कौन सी स्किल तुम विकसित करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो? विच स्किल डू यू वांट टू डेवलप? वन ऑफ द बेस्ट स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल। आप आंसर कर सकते हो, आई वांट टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ऐसे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तुम हर दिन कौन सी गतिविधि करने के आदी हो? कौन सी एक्टिविटी करने के तुम्हें एडिक्शन हो गई है? विच एक्टिविटी आर यू एडिक्टेड टू डूइंग एवरी डे? ऐसे बोलते हो। नेक्स्ट है हमारे पास हु। ठीक है, हु डू यू नीड टू कॉन्टेक्ट? तुम्हें किसको कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है? तुम किससे बात कर रहे थे? हु आर यू टॉकिंग टू? हु आर यू टॉकिंग टू? आई वॉज एक्चुअली इन से आंसर कर दोगे। आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। ठीक है, तुम किसके साथ काम करने वाले हो? Who are you going to work with? I'm going to work with सलमान। मैं सलमान के साथ काम करने वाला हूं। I'm going to work with सलमान। राइट। नेक्स्ट है, तुम्हें किसे धन्यवाद देना चाहते हो? Who do you want to? तुम किसे थैंक यू बोलना चाहते हो? कैसे बोलेंगे? Who do you want to thank? तुम किससे बातचीत करने के आदी हो? Who are you addicted to chatting with? Who are you addicted to chatting with? राइट। नेक्स्ट देखते हैं whom। राइट। अब देखिए whom में क्या यूज करेंगे हम? whom मतलब होता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तुम्हें किसे फोन करना चाहिए? किसी भी इंसान के लिए whom यूज करते हैं हम, किसी के लिए। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। तुम्हें किसे फोन करना चाहिए? whom do you need to call? whom do you need to call? और whom do you need to ring up? मैंने बताई थी आपको एक एक्शन, whom do you need to ring up? नेक्स्ट देखिए, तुमने किसे अपना साथी चुना है? तुमने किसे अपना साथी चुना है? Whom have you chosen as your partner? Whom have you chosen as your partner? नेक्स्ट है, तुम कल किससे मिले? Whom did you meet yesterday? Whom did you meet yesterday? नेक्स्ट है, तुम किसकी सहायता कर रहे थे? Whom were you helping? और कल कर रहे थे तो whom were you helping yesterday? तुम किससे आमंत्रित करने वाले हो? आमंत्रित मतलब होता है इनवाइट। तुम किसे आमंत्रित करने वाले हो? Whom are you going to invite? तुम किसका समर्थन करना चाहते हो? Whom do you want to support? तुम किसे संदेश भेजने के आदी हो? Whom are you addicted to texting? और उसके बाद है whose advice do you need to follow? Guys, next है हमारे पास whose। whose हम यूज करते हैं कब? जब हमें किसकी चुनना हो। किसकी, ठीक है, मेरी, तुम्हारी, किसकी, उसकी, ऐसे। whose किसकी, तुम किसकी सलाह माननी है? तुम्हें किसकी सलाह माननी है? Whose advice do you need to follow? तुम्हें किसके निर्देश मानने चाहिए? Whose instructions are you supposed to obey? Your parents, आप बोल सकते हो my parents, my teachers, ठीक है, किसी के भी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। तो whose project have you completed? किसका प्रोजेक्ट तुमने कंप्लीट कर लिया है? नेक्स्ट देखेंगे, तुमने किसकी पुस्तक उधार ली? Whose book did you borrow? तुमने किस प्रस्तुति देख रहे हो? प्रस्तुति मतलब होता है प्रेजेंटेशन। Whose presentations were you watching? तुम किसकी प्रस्तुति देख रहे थे? किसकी प्रेजेंटेशन देख रहे थे? Whose presentation were you watching? Whose presentation were you watching? तुम किसकी टीम में शामिल होने वाले हो? Whose team are you going to join? Whose team are you going to join? तुम किसकी राय सुनना चाहते हो? Whose opinion do you want to hear? तुम किसकी सामग्री के आदी हो? ठीक है, तुम किसकी सामग्री के आदी हो मतलब क्या देखने के, कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसको देखने के तुम आदी हो? कौन सी ऐसी सामग्री है जिसको देखने के आदी हो मतलब कौन सा ऐसा कंटेंट है? Whose content are you addicted to watching? आपके हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। I'm addicted to watching कोई सा भी जो कंटेंट है। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी मतलब होता है दोस्तों कितने। इसमें हाउ मेनी के बाद हाउ मच भी होता है। अब हाउ मेनी जो होता है उसमें काउंटेबल होता है, इसको आप काउंट कर सकते हो, उंगली पर काउंट कर सकते हो, फिंगर्स पर 1 2 3 4 ये डिफरेंस होता है। इसके बाद हाउ मच आएगा, उसमें डिफरेंस है हाउ मच और हाउ मेनी में। हाउ मच को आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होता है। पानी आप ये नहीं बोल सकते एक पानी दो पानी, ठीक है, तो पानी को आप नहीं बोलोगे, आप बोल दोगे हवा, 3 हवा 4 हवा, ऐसा कभी बोलते हो सुना है आपने? तो ऐसा कोई नहीं बोलता है। आप जिसको काउंट कर सकते हो वहां हाउ मच हाउ मेनी यूज करना है, आप जिसको काउंट कर सकते हो वहां हाउ मेनी यूज करना है, और जो अनकाउंटेबल है वहां पर हाउ मच यूज करना है। ठीक है, अब देखिए तुम्हें कितने अध्याय दोहराने हैं? अध्याय मतलब लेसन, तुम्हें कितने लेसन रिपीट करने हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स डू यू नीड टू रिवाइज? हाउ मेनी चैप्टर्स डू यू नीड टू रिवाइज? हाउ मेनी मतलब कितने, ध्यान रखना, तुम्हें कितने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स डू यू नीड टू रिवाइज?
तुम्हें आज कितने कार्य पूरे करने, कितने काम तुम्हें आज पूरे करने। हाउ मेनी, कितने के लिए हम यूज करते हैं हाउ मेनी। हाउ मेनी टास्क आर यू सपोज टू फिनिश टुडे, हाउ मेनी टास्क आर यू सपोज टू फिनिश टुडे। नेक्स्ट है, तुम इस महीने कितनी पुस्तकें पढ़ी है तुमने। नेक्स्ट है, तुमने इस महीने कितनी पुस्तकें पढ़ी है। हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड दिस मंथ। गाइज ये जो दिख रहा है ना READ, मैं बता देता हूं आपको READ, अगर ये एक्शन सेकंड फॉर्म या एक्शन थर्ड फॉर्म में यूज हो रहा है, या तो एक्शन सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में यूज हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे रेड। क्या बोलोगे, रेड। इसको रीड नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसको रेड प्रोनाउंस करेंगे। हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड दिस मंथ, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए और कुछ हाउ मेनी के क्वेश्चन है। अच्छा हुआ हाउ मेनी और हाउ मच साथ में आ गए। तुमने कितने प्रश्नों के उत्तर दिया, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू आंसर। तुमने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए थे, कैसे बोल सकते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू आंसर। कितने छात्र भाग ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे थे, कैसे बोलेंगे, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग, और कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए वर की जगह आर आ जाएगा बस, बाकी सेम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, तुम कितने कोर्स करने वाले हो। हाउ मेनी कोर्सेज आर यू गोइंग टू टेक, हाउ मेनी कोर्सेज आर यू गोइंग टू टेक। और तुम कितनी भाषाएं सीखना चाहते हो। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू वांट टू लर्न, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू वांट टू लर्न। तुम हर दिन कितने घंटे खेलने के आदी हो। हाउ मेनी आवर्स आर यू एडिक्टेड टू गेमिंग एवरी डे, ठीक है, प्लेइंग गेम्स भी हो सकता है, गेमिंग भी हो सकता है। हाउ मच आ गया, इसका मतलब भी कितने होते हैं, लेकिन ये यूज होता है अनकाउंटेबल, ये ध्यान रखना, इसको आप काउंट नहीं कर सकते गाइस, ये अनकाउंटेबल होता है। तुम्हें कितना पैसा बचाना है। अब देखो आप बोलोगे सर पैसा तो हम काउंट कर सकते हैं, मनी तो नहीं सर, मनी आप काउंट नहीं कर सकते। आप क्या काउंट कर सकते हो, आप कॉइन्स काउंट कर सकते हो, एक कॉइन, दो कॉइन, कितने कॉइन्स है, कॉइन्स आप काउंट कर सकते हो दोस्तों, आप कॉइन्स काउंट कर सकते हो, आप बिल्स काउंट कर सकते हो। अब मैंने एक वर्ड दिया आपको, बिल्स। देखो जो नोट्स होते हैं ना, हमारे यहाँ नोट्स बोले जाते हैं, उनको बिल्स कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना। तो जैसे मेरे पास 100 के 3 नोट है, 100 के 3 नोट्स है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा कि 3 बिल्स, 3 मैं बोलूंगा 3 बिल्स ऑफ 100 रुपीज। मेरे पास 100 रुपीज के कितने नोट्स है, 3 नोट है, मैं बोलूंगा 3 बिल्स ऑफ 100 रुपीज। हाउ मेनी बिल्स, ये काउंटेबल हो जाएगा, नोट जो है आपके वो काउंटेबल हो जाएंगे। ध्यान रखिए, नोट्स को बिल कहते हैं हम इंग्लिश के अंदर, नोट जो होते हैं आपको उसको बिल कहते हैं हम। तो कितने बिल है आपके पास, ये काउंटेबल है। हाउ मेनी बिल्स ऑफ 100 रुपीज डू यू हैव, राइट। लेकिन जो आपके कॉइन्स है वो भी काउंटेबल है, लेकिन पैसा जो है ना वो काउंटेबल नहीं है। मनी इज नॉट काउंटेबल, इसको अनकाउंटेबल में आता है। पैसे की जो चीजें हैं वो काउंटेबल है, नोट काउंटेबल, एक एक नोट को गिन रहे हो, लेकिन पैसा काउंटेबल नहीं है। सो हाउ मेनी मनी, हाउ मच मनी कैसे बोलेंगे, हाउ मच मनी कैसे बोलेंगे, तुम्हें कितना पैसा बचाना है। हाउ मच मनी डू यू नीड टू सेव, तुम्हें कितना प्रयास करना चाहिए। हाउ मच एफर्ट आर यू सपोज टू पुट इन। आप एफर्ट को गिन थोड़ी सकते हो, एक प्रयास, दो प्रयास, है ना, इतनी मेहनत, 1 किलो मेहनत, 2 किलो मेहनत, तो ये नहीं हो सकता ऑब्वियसली। सो हाउ मच एफर्ट आर यू सपोज टू पुट इन। तुमने कितनी प्रगति की है, अब प्रोग्रेस कितनी की है। अब प्रोग्रेस को आप काउंट थोड़ी कर सकते हो, प्रोग्रेस को मैंने 3 प्रोग्रेस कर ली, 4 प्रोग्रेस, नो इट्स अनकाउंटेबल, इसलिए हाउ मच लेना है। हाउ मच प्रोग्रेस हैव यू मेड। उसके बाद है हाउ मच डिड यू स्पेंड यस्टरडे, तुमने कल कितना खर्चा किया, ठीक है। तुम कितनी देर इंतजार कर रहे थे, तुम कितनी देर इंतजार कर रहे थे। हाउ मच टाइम वर यू वेटिंग, टाइम भी अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है टाइम, ठीक है। तुम कितना निवेश करने वाले हो, हाउ मच आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट, कितना करने वाले हो इन्वेस्ट, वो चीज है। आप देखो इन्वेस्ट करने के लिए अगर ये पूछ ले आपसे कि यार कितने नोट्स इन्वेस्ट करने वाले हो, कितने बिल्स, इंग्लिश में बोलते हैं बिल्स, अभी भी बताया मैंने, दोबारा बता रहा हूं, बिल्स। तो कितने बिल्स इन्वेस्ट करने वाले हो, उसके लिए तो आप क्या यूज करोगे, हाउ मेनी बिल्स, हाउ मेनी बिल्स आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट। हाउ मेनी बिल्स ऑफ 100 रुपीज, हाउ मेनी बिल्स ऑफ 500 रुपीज आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट। बिल्स आप काउंट कर सकते हो, पैसा आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है वो, ठीक है। हाउ मच डू यू वॉन्ट टू अर्न, तुम कितना कमाना चाहते हो, तुम कितना कमाना चाहते हो, हाउ मच डू यू वॉन्ट टू अर्न। तुम ऑनलाइन खरीदारी के कितने आदी हो, कितने आदी हो मतलब, ठीक है। तो हाउ मच आर यू एडिक्टेड टू ऑनलाइन शॉपिंग, हाउ मच आर यू एडिक्टेड टू ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हो गई है ना, अलग अलग एप्लीकेशन से मंगवाना है लोगों को। हाउ लॉन्ग, देखो हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं हम कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, कोई भी चीजें कितनी देर से है, तो हाउ लॉन्ग यूज करते हैं। जैसे तुम्हें कितनी देर अभ्यास करना है, हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू प्रैक्टिस,
हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू प्रैक्टिस, तुम्हें यहाँ कितनी देर रुकना चाहिए. हाउ लॉन्ग आर यू सपोज टू स्टे हियर, हाउ लॉन्ग आर यू सपोज टू स्टे हियर, तुम उसे कितने समय से जानते हो. हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, अगर लड़की है तो, और लड़का है तो हाउ लॉन्ग हैव यू, हाउ लॉन्ग, और अगर लड़का है तो हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, लड़की है तो हर. हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर. हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क देयर, तुमने वहां कितने देर काम करते रहे, तुम वहां कितनी देर काम करते रहे. हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क देयर. राइट. नेक्स्ट देखेंगे, और है कुछ हाउ लॉन्ग है. तुम बस का कितनी देर इंतजार कर रहे थे. हाउ लॉन्ग वर यू वेटिंग फॉर द बस, हाउ लॉन्ग वर यू वेटिंग फॉर द बस, तुम मेरा कितनी देर इंतजार कर रहे थे. हाउ लॉन्ग वर यू वेटिंग फॉर मी, हाउ लॉन्ग वर यू वेटिंग फॉर मी. तुम ये कोर्स कितनी देर तक जारी रखने वाले हो. हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू कंटिन्यू दिस कोर्स. तुम विदेश में कितने समय तक रहना चाहते हो. हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू लिव अब्रोड, विदेश को अब्रोड बोलते हैं, ध्यान रखना. तुम विदेश में कितने समय के लिए रहना चाहते हो. हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू लिव अब्रोड, विदेश जो होता है ना, दूसरी कंट्री, उसको विदेश बोलते हैं. तुम कब से उपन्यास पढ़ने के आदी हो. उपन्यास मतलब होता है नॉवेल्स, नॉवेल्स होती है बुक्स 300-200 पेजेस की, इसमें स्टोरी होती है. ठीक है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एडिक्टेड टू रीडिंग नॉवेल्स. मैं मेरी बताऊं तो आई हैव बीन एडिक्टेड टू रीडिंग नॉवेल्स सिंस 2020. कोरोना टाइम से मैंने स्टार्ट किया था, एंड आई हैव बीन रीडिंग नॉवेल्स सिंस 2020. तो मैं 2020 से नॉवेल्स पढ़ रहा हूं. हाउ फार यूज होता है कितनी दूर के लिए. ठीक है. फार मतलब है डिस्टेंस, कितनी दूर के लिए. सो हाउ फार डू यू नीड टू ट्रेवल, तुम्हें कितनी दूर यात्रा करनी है. हाउ फार डू यू नीड टू ट्रेवल एवरी डे, अगर यहाँ पे एवरी डे लगाना चाहो तो लगा सकते हो. तुम्हें हर रोज कितनी देर के लिए यात्रा करनी पड़ती है और ट्रेवल करना पड़ता है. हाउ फार डू यू नीड टू ट्रेवल. आई नीड टू ट्रेवल 20 किलोमीटर एवरी डे. मैं आंसर कर सकता हूं मेरा, मुझे 20 किलोमीटर हर दिन क्या करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है. आई नीड टू ट्रेवल 20 किलोमीटर अ डे. या अगर ज्यादा है किसी का तो ज्यादा बोल देंगे उस हिसाब से. तुम्हें कितनी दूर चलना चाहिए. हाउ फार आर यू सपोज टू वॉक, मैं कितनी दूर चलना चाहिए. हाउ फार आर यू सपोज टू वॉक. तुम कल कितनी दूर गए. हाउ फार डिड यू गो यस्टरडे. ठीक है. तुम कितनी दूर साइकिल चला रहे थे. हाउ फार वर यू साइकिलिंग. तुम यहां कितनी दूर जाने वाले हो, तुम यहां से कितनी दूर जाने वाले हो. हाउ फार आर यू गोइंग टू मूव फ्रॉम हियर. तुम कितनी दूर तक घूमना चाहते हो. हाउ फार डू यू वांट टू एक्सप्लोर. सफलता के पीछे भागने की आदत में तुम कितनी दूर तक जा चुके हो. हाउ फार हैव यू बीन एडिक्टेड टू चेजिंग सक्सेस. ठीक है. अब देखते हैं हाउ ऑफन. हाउ ऑफन मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार. तुम्हें कितनी बार व्यायाम करना चाहिए, तुम्हें कितनी बार एक्सरसाइज करनी चाहिए. हाउ ऑफन डू यू नीड टू एक्सरसाइज एवरी वीक, है ना. तुम्हें हर हफ्ते कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए. 5 days a week, 6 days a week, 4 days a week. I think 4, 5, 6 ये अच्छे नंबर्स है. If you really want to do, then every day भी कर सकते हो. ठीक है. I need to exercise every day. मुझे डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. तुम्हें कितनी बार कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए. तो हाउ often are you supposed to attend class. कितनी क्लासेस होनी चाहिए. अटेंडेंस बहुत मैटर करती है. हाउ आर यू supposed to attend classes. अब आप लोग भी अटेंडेंस दे रहे हो. तुम इस स्थान पर कितनी बार आए हो. हाउ ऑफन हैव यू विजिटेड दिस प्लेस. हाउ ऑफन हैव यू विजिटेड दिस प्लेस. तुमने अपने मित्र को कितनी बार फोन किया, अपने दोस्त को. हाउ ऑफन डिड यू कॉल योर फ्रेंड. ठीक है. इस तरीके से बोलते हैं. और उसके बाद है, तुम कितनी बार यात्रा कर रहे थे. हाउ ऑफन वर यू ट्रेवलिंग. तुम बोलने का अभ्यास कितनी बार करने वाले हो. हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू प्रैक्टिस स्पीकिंग. बहुत बार करना पड़ेगा गाइस, मल्टीपल टाइम से. आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस स्पीकिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्पोकन स्किल्स. ठीक है. मल्टीपल टाइम्स, कई बार करनी पड़ेगी तब जाके होगा. तुम कितनी बार बाहर जाना चाहते हो. हाउ ऑफन डू यू वांट टू गो आउट. बाहर जाने को बोलते हैं गो आउट. बाहर जाना मतलब है गो आउट, बाहर जाना और एंजॉय करना लाइफ को. ठीक है. घर से बाहर जाना तो गो आउट. हाउ ऑफन डू यू वांट टू गो आउट. हाउ ऑफन आर यू एडिक्टेड टू चेकिंग नोटिफिकेशंस. ये भी एक बहुत गंदी आदत है, नोटिफिकेशन चेक करना. बार बार में हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं. भाई मैसेज तो नहीं आया, अरे अब तो आएगा, अब आएगा, नहीं आता है. ठीक है. तो नोटिफिकेशन चेक करते हैं और कभी कभी आ भी जाता है, तो फिर उसके बाद हम फिर चेक करते हैं, फिर देखते हैं आया ही नहीं. तो ये होता रहता है. हाउ ओल्ड मतलब क्या होता है. हाउ ओल्ड होता है जब उम्र के लिए या किसी एज के लिए हम बात करें. ठीक है. कितनी उम्र. हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितनी उम्र. राइट. तो आवेदन करने के लिए तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए. हाउ ओल्ड डू यू नीड टू बी. हाउ ओल्ड डू यू नीड टू बी टू अप्लाई. क्लब में शामिल होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए.
how old are you supposed to be to join the club? How old are you supposed to be to join the club? Right? Next है, अब तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? अब तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? How old have you become now? How old have you become now? देखो कितना अच्छा सेंटेंस है. अब तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? How old have you become now? ठीक है. कम्मो कितने साल की हो गई है? 3 इडियट्स वाली कम्मो सबको याद है, तो कैसे बोलेंगे? हाउ ओल्ड. कम्मो थर्ड पर्सन है गाइस, उसके लिए हैज यूज करेंगे. हैज कम्मो 28 की हो गई है कम्मो, और लड़के वाले क्या मांग रहे हैं? मारुति 800, पता है ना? तो कैसे बोलेंगे? हाउ ओल्ड हैज कम्मो बिकम नाउ. तो बोल सकते हो शी इज 28 years old now. She is 28 years old now. अब तो 300 का आए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो अब तो कम आपको पता है कितने साल की हो गई थी, उस हिसाब से आप लगा लेना. राइट? जब तूने पहला प्राइज जीता था, तुम्हारी एज क्या थी? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू वन योर फर्स्ट प्राइज? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू वन योर फर्स्ट प्राइज? आप बोल सकते हो, अगर आप फर्स्ट में थे तो आप हो गए अराउंड 6-7 years के. आप बोल सकते हो जो भी आपकी एज थी. आई वॉज 6 years old, आई वॉज 7 years old, आई वॉज 10 years old, आई वॉज 12 years old, जो भी है. जब तुमने स्कूल शुरू किया तो तुम्हारी उम्र कितनी थी? ये सवाल आप जरूर पूछना अपने आप से. हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड स्कूल? सबकी अलग अलग एज होती है गाइस. तो आप बोल सकते हो आई वॉज 3 years old, आई वॉज 5 years old, आई वॉज 6, आई वॉज 8, आई वॉज 10, जो भी है, जो भी एज हो सकती है. राइट? अगले वर्ष तुम्हारी उम्र कितनी होगी? हाउ ओल्ड आर यू गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर? तू अगले साल कितने साल का हो जाएगा? सामने वाले से पूछ सकते हैं, अगले साल तो कितने साल का हो जाएगा? हाउ ओल्ड आर यू गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर? तुम कितनी उम्र तक जीना चाहते हो? हाउ ओल्ड डू यू वांट टू लिव टू बी? हाउ ओल्ड डू यू वांट टू लिव टू बी? तुम कितनी उम्र तक जीना चाहते हो? कुछ लोग सोचते हैं यार मैं 70 साल जी जाऊं, 70, मैं 60 जी जाऊं, मैं यार 90, मैं 100, मैं तो 110 जीना चाहता हूं, मैं तो मरना ही नहीं चाहता. ठीक है, सबके अलग अलग चाहत है. जब तुम पढ़ने के आदी बने तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू बिकेम एडिक्टेड टू रीडिंग? अब कितने लोग हैं रीडिंग के आदी बनना? तो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़े बहुत तो आदी बन ही जाओ, हैबिट में तो लेके आओ इसको. हाउ टॉल मतलब होता है कितनी लंबाई. ठीक है, कितनी लंबाई. हाउ टॉल, कितनी लंबाई. राइट गाइस? देखिए, इस झूले के लिए तुम्हारी लंबाई कितनी होनी चाहिए? हाउ टॉल डू यू नीड टू बी फॉर दिस राइड? हाउ टॉल डू यू नीड टू बी फॉर दिस राइड? नेक्स्ट देखते हैं, टीम में शामिल होने के लिए तुम्हारी लंबाई कितनी होनी चाहिए? How tall are you supposed to join the team? How old are you supposed to join the team? Next है, इस वर्ष तुम्हारी लंबाई कितनी बड़ी है? So how tall have you grown this year? How tall have you grown this year? 10 वर्ष की उम्र में तुम्हारी लंबाई कितनी थी? How tall were you at the age of 10? 12 वर्ष की उम्र में तुम्हारी लंबाई कितनी थी? How old were you at the age of 12? ठीक है, इस तरीके से आप बोलते हो. नेक्स्ट है, स्कूल में तुम्हारे भाई की लंबाई कितनी थी? How tall was your brother when he was in school? डॉक्टर के अनुसार तुम्हारी लंबाई कितनी होने वाली है? How tall are you going to be according to the doctor? How tall do you want to become? ये सवाल अपने आप से पूछोगे, कितने लंबे आप होना चाहते हो. ठीक है, क्या हाइट आप चाहते हो? कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं 6 फीट का हो जाऊं, 6 फीट. कुछ लोग बोलते हैं 6'3". ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं 5'10", कुछ लोग बोलते हैं 6'5", कुछ लोग 7 फीट. सबके अलग अलग चाहते हैं. तुम कितना लंबा होना चाहते हो? How tall do you want to become? जिस खिलाड़ी को तुम देखना पसंद करते थे उसकी लंबाई कितनी थी? How tall was the athlete you were addicted to watching? How tall was the athlete you were addicted to watching? ठीक है, और अगर है तो कैसे बोलोगे? was की जगह is लगा देना. was की जगह लगा दोगे is. How tall is the athlete you are? is लगा दोगे और यहां पर are कर दोगे. राइट? जैसे मैं फैन हूं रोमन रेंस का, WWE एथलीट है. राइट? He's a WWE athlete and also the world heavyweight champion right now. So he's 6'3". So मैं कैसे बोल सकता हूं? Roman Reigns, the athlete that I was addicted to watching, is 6'3", 6 feet 3 inch. तो ये है गाइस, इस हिसाब से आप क्वेश्चन पूछते हो. आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी. इन क्वेश्चंस को पूछना है अच्छे से, समझना है अच्छे से, और फिर हम आगे और करेंगे क्लासेस. तो क्वेश्चंस बहुत जरूरी है. इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये कि क्वेश्चन पूछना आपको आना चाहिए. जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने किए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम कर चुके हैं, उन सब स्ट्रक्चर्स के साथ इनको प्रैक्टिस कीजिए. आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करने. मैंने पहले भी ये बोला था क्लास में, अभी भी बोल रहा हूं, क्वेश्चन ही वो चीज है जिससे आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है. राइट? तो क्वेश्चन आनी चाहिए आपको.
जितना अच्छा आप क्वेश्चन पूछोगे ना, उतने अच्छे आपको सोल्यूशन मिलेंगे, उतने अच्छे आपको रिप्लाईज मिलेंगे, उतने अच्छे आपको आंसर मिलेंगे. तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन depends on the quality of answer or reply. So that is enough for today from Sarwar Khan's side, and we are going to meet in the next class for sure. So till then, catch you later.